Students of class 12th, today's in my bit we explain next topics of the chapter solid states. Students, firstly we describe about solids, that is crystalline solids, but today's we explain amorphous solids. So amorphous solids, the custody of amorphous solids. The amorphous solids से what is property of amorphous solids, that is point first, they have a irregular shape. amorphous solids that is irregular shape, जैसे हमने अभी आपको शो किया फिगर्स, दिस फिगर, the given figure and arrangement of atom molecules that is irregular, the irregular arrangement that is amorphous form. Point second, they have a short range order. Point third, they gradually soften. These are very soft over a range of temperature. So an increasing temperature, amorphous solids are softened. Next point third. Point fourth, they are isotropic in nature, that is their physical property are the same in all direction. Amorphous solids are isotropics and physical property are same in all directions. तो जो जिससे भी इससे पहले आपने स्टूडेंट देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में सेम नहीं होते हैं, बट इन amorphous solids property are same in all direction. Next point, when cut with sharp edges tools, they cut into two pieces with irregular surface. Next point, they do not have definite heat of fusion. इनका कोई definite heat of fusion नहीं होता है. Next point, they are called pseudo solids. इनको pseudo solids नाम दिया जाता है. pseudo solids already known as false solids. सीडो इनको जो फॉल्स सॉलिड्स नेम दिया जाता है क्योंकि स्पेशली ये जो है सॉलिड की प्रॉपर्टी मैक्सिमम प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं जो एक आइडियल सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है. सो amorphous solid आल्सो नोन एज सीडो सॉलिड्स आर सुपर कोल्ड सॉलिड्स, और इनको सुपर कोल्ड सॉलिड भी नाम दिया जाता है. दिस इज बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो थ्रो वेरी स्लोली, क्योंकि इनकी जो है फ्लो होने की टेंडेंसी होती है. सो नेक्स्ट पॉइंट्स we see that is types of crystalline solids. Students, after it we see crystalline solids and amorphous solids, shape of crystalline solids and shape of amorphous solids, but and some properties of crystalline solids and some properties of amorphous solids. But now we see the type of crystalline solids. crystalline solids की हम जो है इसका टाइप देखेंगे. फर्स्ट दैट इज मॉलिक्यूलर solids. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स स्टूडेंट्स, हम यहाँ आपको एक टेबल शो कर रहे हैं जिनमें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल्स, जिसमें आप देख सकते हैं टेबल्स में कि टाइप ऑफ सॉलिड्स आपको दिया गया है. तो टाइप ऑफ सॉलिड्स में यहाँ 3 टाइप सॉलिड्स आपको शो किया गया है. दैट इज नॉन पोलर सॉलिड्स, सेकेंड पोलर सॉलिड्स एंड थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स. ये 3 टाइप आपको सॉलिड यहाँ शो किया गया है. और इस सॉलिड्स के जो हैं अगर हम देखें कि सॉलिड्स का कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कैसा है, सॉलिड में बॉन्डिंग अट्रैक्शन फोर्स, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग अट्रैक्शन फोर्स इन सॉलिड्स. तो सॉलिड्स में किस टाइप का बॉन्डिंग अट्रैक्शन फोर्स है.
electrical conductivity, solid are that is electrical conductivity or non conductivity. Next point, physical nature. What is the physical nature of solids? तो ये जो 3 टाइप सॉलिड हमने शो किया, तो व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज of solids, melting points of solids, and with example. These are very very important points such as constitutes bonding, electrical conductivity, physical nature that is gaseous state, solid gaseous state, liquid state, and so on. Melting point and example. तो स्टूडेंट्स इस टेबल में जो हमने शो किया है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट्स है and in competition view and view of board examination, that is very important. One question repeated in this tables again and again for years. Firstly we see the molecular solids की अगर हम बात करें तो molecular solids बॉन्डिंग अट्रैक्शन, डिस्पर्सन और लंदन फोर्स. इसमें बॉन्डिंग अट्रैक्शन कैसा होता है, डिस्पर्सन और लंदन फोर्स होता है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज इंसुलेटर दैट इज नॉन कंडक्टर. तो ये जो नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं या नॉन पोलर सॉलिड्स दैट इज इलेक्ट्रिकल, नॉन कंडक्टर दैट इज इंसुलेटर. फिजिकल नेचर में दैट इज सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो. एग्जाम्पल में आर्गन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड. तो स्टूडेंट्स ऑलवेज आप लोग ये देखते होंगे, ऑलवेज यू हैव सीन दैट इन एटमॉस्फेयर वेरियस मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड दीज आर नॉर्मली नॉन पोलर सॉलिड्स. सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं. सेकेंड पॉइंट्स, polar solids, constituent particles, polar solids constitute particles molecule form, bonding that is dipole interactions, electrical conductivity, insulators, physical nature soft, मेल्टिंग पॉइंट लो. एग्जाम्पल HCl सॉलिड्स, SO2 सॉलिड्स, अमोनिया सॉलिड्स. तो इसमें से यहाँ जब आपको पॉइंट दिखाया गया HCl सॉलिड, HCl अगर सॉलिड फॉर्म में है दैट इज इंसुलेटर, बट व्हेन HCl इज आयनिक फॉर्म प्रोवाइड्स H+ and Cl- दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं. पॉइंट थर्ड, हाइड्रोजन बॉन्डेड दैट इज मॉलिक्यूल्स फॉर्म, बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, इंसुलेटर, हार्ड, मेल्टिंग पॉइंट लो. फॉर एग्जांपल आइस, वाटर. तो सो स्टूडेंट्स जो है ये जो टेबल हमने अभी आपको शो किया दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. हाँ स्टूडेंट्स, पॉइंट बी, आयनिक सॉलिड्स. फर्स्टली वी सी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड आफ्टर इट आयनिक सॉलिड्स. आयनिक सॉलिड कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आयंस. आयनिक सॉलिड्स नेम से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं आयंस होते हैं. बॉन्डिंग अट्रैक्शन फोर्स, इसमें अट्रैक्शन फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और कोलम्बिक फोर्स. कूलम्ब नाम आप जानते हैं जो चार्ज पे वर्क किए, दैट इज फोर्स अट्रैक्शन कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो स्टूडेंट जो है आयनिक सॉलिड ऑलवेज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इंसुलेशन इन सॉलिड स्टेट, फिर भी अगर सॉलिड स्टेट में है, सपोज कीजिए कि NaCl सोडियम क्लोराइड इज सॉलिड स्टेट दैट इज इंसुलेटर, बट सोडियम क्लोराइड्स in a aqueous form that is conductor, but conduct in molten state and in aqueous medium. तो सॉलिड फॉर्म में आयनिक जो सॉलिड होते हैं, इन सॉलिड फॉर्म सॉलिड स्टेट इंसुलेटर, बट मोल्टेन स्टेट दैट इज कंडक्टर. फिजिकल नेचर,
फिजिकल नेचर हार्ड एंड ब्रिस्टल। तो आयनिक सॉलिड का जो नेचर होता है हार्ड होता है, ब्रिस्टल होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। एग्जाम्पल CaF2, ZnS, MgO, NaCl, दीज आर आयनिक सॉलिड्स। एग्जाम्पल आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स constitute particles, positive ions in a sea of delocalization electrons, bonding attraction metallic bondings, electrical conductivity conductor in solid state as well as molten state. तो metal are conductor of electricity in solid state and molten states. Physical nature hard but malleable and ductile. Student, that is property of metals. Metals property hard, malleable and brittle. Melting point fairly high. Examples of metallic solids, that is copper, silver, magnesium, iron and so on. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स एटम्स, बॉन्डिंग अट्रैक्शन कोवैलेंट बॉन्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट्स। फिजिकल नेचर दैट इज हार्ड बट malleable and ductiles. Melting point is very high. Example SiO2, SiC, carbon, that is allotrop of diamond and graphite, in which graphite are conductor and diamond are non-conductor. हाँ स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी अभी मैं दिखाया कोवैलेंट सॉलिड्स का, एग्जांपल्स सिलिका, SiC, carbon and graphite, in which graphite and carbon both are allotrop of carbon. Diamond and graphite both are allotrop of carbon, but diamond is the non-conductor and the graphite are the conductor. What is this reason? इसका क्या रीजन है? ग्रेफाइट्स कंडक्टर है एंड डायमंड नॉन कंडक्टर है. What is reason? Comment on this video. After subscribe this video, comment and give answer why carbons have more than 2 allotrop, diamond, graphite, fullerene and so on, but two major allotrop, that is diamond and graphite, but diamond is the non-conductor and graphite is the conductor. Diamond is the hard substance and graphite is the soft substance. Give reasons and answer, provide answer in this channel. So thanks.